Good morning, students. Yesterday I taught you about the concept of center of mass. Today I am going to teach you law of conservation of linear momentum in terms of center of mass. Then couple of examples of motion of center of mass. Then couple of numericals. So first of all, law of conservation of momentum in terms of concept of center of mass. Yesterday I derived this equation that total external force acting on the system is equal to mass of system, and this is position vector of center of mass, so it becomes acceleration of center of mass. We know velocity is equal to dr by dt, where r is the position vector. तो it is position vector of center of mass, तो ये हुई हमारी velocity of center of mass. Now then acceleration of center of mass will be equal to derivative of velocity of center of mass with respect to time. Put value of velocity v, it is dr. From this equation v center of mass is dr by dt, so it gives us d square r upon dt square. So this is acceleration of center of mass. So we can say total external force acting on system is equal to mass of system multiplied by acceleration of center of mass. Now acceleration of center of mass can be rewritten. This is you may also write d square r by dt. It can be written equal to this, and this is the velocity of center of mass. So this is velocity of center of mass, ये dr by dt. So this is f total external. Now m को अंदर ले जाइए, it is constant, so ये बन जाएगा हमारा momentum of system, where v is velocity of center of mass. Now if no external force acts on the system, अगर ये जीरो है तो put left hand side equal to जीरो, तो जीरो is equal to dmv by dt. दिस साइड इज जीरो, तो ये साइड भी जीरो होनी चाहिए, एंड ये साइड जीरो कब होगी? व्हेन एम वी वेक्टर इज कांस्टेंट, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा? जीरो. यू मे राइट इट, दिस इज डी पी अपॉन डी टी, वेयर एम वी इज लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम. So if this side is 0, this right hand side should also be 0, and it is possible only when p is constant, because constant का derivative 0 होता है. तो अगर p constant है तो इधर 0, तो इस तरफ भी 0 आ जाएगा. So it implies p is constant. p constant means m into v vector is constant. So we can say if no external force acts on the system, then total momentum of the system is constant. But mind you, this is velocity of center of mass. Now some examples of motion of center of mass. First is decay of a radioactive nucleus. If you remember, yesterday I told you that if no external force acts on the system, then center of mass moves with uniform velocity. Or you can also say if no force acts, F is equal to ma, you know. Now if F is 0, it means ma is 0.
it means 0 upon m is 0, so 0 is a, so we can say acceleration is 0. एक्सेलरेशन 0 कब हो सकता है? इट इम्प्लाइज या तो v वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी नहीं चेंज हो तो एक्सेलरेशन 0, और इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट v इज 0. इफ वेलोसिटी 0 तब भी एक्सेलरेशन 0 होगा, बिकॉज वी नो दैट इट इज v2 माइनस v1 अपॉन t. सो अगर इनिशियल वेलोसिटी से 5 है और फाइनल भी 5 है तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी भी 0, तब भी एक्सेलरेशन 0. इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0, अगेन एक्सेलरेशन 0. तो एक्सेलरेशन कैन बी 0 अगर बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहे, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलती रहे. सो कल हमने पढ़ा था कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी. तो इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम देन सेंटर ऑफ मास विल either move with constant velocity, or if it is at rest then it will remain at rest. रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा. अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या वेलोसिटी से चल रहा था तो उसी स्पीड से ही चलता रहेगा. तो यहाँ पे ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये डिसइंटीग्रेट हुआ. डिसइंटीग्रेशन इज बिकॉज ऑफ सम इंटरनल फोर्स. हमने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी. इट इज़ अ स्फीयर एंड इट्स सेंटर ऑफ मास इज एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर. दिस इज द सेंटर ऑफ मास, ये स्फेरिकल न्यूक्लियस. तो ये स्फीयर अगर रेस्ट में है तो इसके अंदर जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज ऑल्सो एट रेस्ट. तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी और ये एक्सप्लोड कर गया, डिके कर गया. तो एक्सटर्नल फोर्स में कोई चेंज नहीं हो, पहले भी 0 थी और फटने के बाद भी 0. तो इट मीन्स सेंटर ऑफ मास अगर पहले रेस्ट में था तो फटने के बाद भी रेस्ट में ही रहेगा. तो इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की बिफोर डिके वॉज 0, तो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 रहनी चाहिए. मीन सेंटर ऑफ मास जहाँ था उसी जगह पे रहना चाहिए. इट कैनॉट मूव. 0 थी वेलोसिटी पहले तो बाद में 0. तो इसके सपोज 2 फ्रेगमेंट हुए, एक फ्रेगमेंट इधर गया, दूसरा फ्रेगमेंट इधर गया. इसको मैंने यहाँ के बजाय नीचे दिखाया कि ये फट गया और एक टुकड़ा इधर चला गया, एक टुकड़ा इधर चला. तो सेंटर ऑफ मास यहाँ था तो यहाँ भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे ही रहेगा. ये जो हैवियर फ्रेगमेंट है ये स्लो हो गया, इस तरफ थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करी, और जो लाइटर टुकड़ा है इसका उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी. तो सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज लाई टूवर्ड्स द हैवियर ऑब्जेक्ट, तो इसके ज़्यादा पास है. फिर और थोड़ी देर बाद ये और आगे चला गया यहाँ पे और यहाँ पहुँचा, और ये वाला पीस इधर आगे और चला गया, ये दिखाया मैं नीचे वाले फिगर में. तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास फिर से उसी जगह पे. अगर हम एक ही पिक्चर में दिखाना चाहें तो ये कुछ ऐसे होगा, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस, अनडिकेड न्यूक्लियस, ये सेंटर ऑफ मास. तो पहला फ्रेगमेंट इसका यहाँ पे पहुँच गया, ये बड़े वाला, और दूसरा फ्रेगमेंट थोड़ा सा ज़्यादा दूर चला गया जो लाइटर बने. तो ये जो लाइटर है और ये हैवियर है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर होगा. तो पहले यहाँ था बिफोर डिके, तो कहते हैं इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अगर निकालेंगे तो फिर इसी जगह पे ही होगा, ना इधर खिसकेगा ना इधर. फिर और से 2 सेकंड के बाद ये वाला फ्रेगमेंट यहाँ पहुँच गया जो बड़ा भारी वाला था, से एच डैश पे, और ये लाइटर वाला यहाँ आ गया. अब इनका एल डैश जो लाइटर फ्रेगमेंट यहाँ पहुँच गया,
हैवियर यहाँ पहुँच गया, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास फिर से इस लाइन के ऊपर होगा जो इनको ज्वाइन करती है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो सेंटर ऑफ मास फिर से एच डैश और एल डैश का यहीं पे ही आएगा। तो मीन्स जब डिसइंटीग्रेशन नहीं हुई थी तब भी यहीं था, डिसइंटीग्रेट हो गया तो इसके दो टुकड़े एक दूसरे से दूर इस तरह से भाग रहे हैं कि इन दोनों टुकड़ों का सेंटर ऑफ मास जिस जगह पे पहले था उसी जगह पे रहे। फिर और थोड़ी देर बाद ये फ्रेगमेंट यहाँ चला गया और ये एल वाला एल डैश पे चला गया। दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, बट देयर मोशन विल बी इन सच अ वे कि किसी भी वक्त आप सेंटर ऑफ मास निकालें लाइटर और हैवियर फ्रेगमेंट का, वो उसी जगह पे आएगा, इस पे, पहले भी रेस्ट में और डिसइंटीग्रेशन के बाद भी रेस्ट में। सो वी कैन से इसका व्हेन इट वाज अनडिकेड द सेंटर ऑफ मास है। एक सेकेंड बाद सपोज इसका एक टुकड़ा यहाँ पहुँच गया, दूसरा टुकड़ा यहाँ पहुँच गया, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाला, वो भी यहाँ है। आफ्टर 2 सेकेंड सपोज ये हैवियर फ्रेगमेंट यहाँ पहुँच गया, लाइटर फ्रेगमेंट एल से एल डैश आ गया, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे। तो सेंटर ऑफ मास पहले अगर रेस्ट में था बिफोर डिसइंटीग्रेशन, उसके बाद भी रेस्ट में ही रहेगा। नाउ अनदर एग्जांपल, सपोज ये दिस इज़ अ मिसाइल, ये यहाँ से लॉन्च की गई और ये रास्ता पैराबोलिक होना था इसका अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। तो सपोज इट कैरीज 3 वॉरहेड्स, तो यहाँ पे इट एक्सप्लोडेड। अच्छा, वन थिंग मोर, इसका पैराबोलिक पाथ था, कारण था एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी ग्रेविटी, उस ग्रेविटी के कारण इसने पैराबोलिक पाथ फॉलो करना था। बट सपोज एट दिस पॉइंट इट रिलीज 3 वॉरहेड्स, ये तीनों वॉरहेड रिलीज कर दिए इसने, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया। ये तीनों जो वॉरहेड्स हैं ये इस तरह से मूव करेंगे कि इनका सेंटर ऑफ मास जो होगा इट विल कंटिन्यू टू फॉलो सेम इनिशियल ट्रेजेक्ट्री, बिकॉज इसका भार अगर लेटस से 100 kg था, तो जब ये रिलीज किए गए 3 फ्रेगमेंट, तो से इसका 30, इसका 30, इसका 40, तो मास पहले भी 100 था, अब भी 100 है जब ये तीनों रिलीज कर दिए। तो mg द फोर्स जो अर्थ लगा रही थी, दैट फोर्स हैज़ नॉट चेंज्ड। एक्सप्लोजन हो तो भी फोर्स उतनी लग रही है, ना होता तो भी फोर्स उतनी ही रहती। सो देयर इज नो चेंज इन एक्सटर्नल फोर्स। इफ़ नो चेंज, तो कोई भी चेंज इसकी ट्रेजेक्ट्री में नहीं होगा। जो रास्ता पहले फॉलो करना था, जो ट्रेजेक्ट्री इसने फॉलो करनी थी, अगर ये तीनों वॉरहेड्स को रिलीज नहीं करती तो ये ट्रेजेक्ट्री होनी थी। इस मिसाइल के अंदर ही जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास था, तो सेंटर ऑफ मास का जो ट्रेजेक्ट्री है वो ये है। अगर नहीं एक्सप्लोजन होता तो ये ट्रेजेक्ट्री थी। बट सिंस आफ्टर एक्सप्लोजन देयर इज़ नो चेंज इन एक्सटर्नल फोर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेजेक्ट्री जो है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ये तीनों ऐसे मूव करा, सपोज इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, थोड़ी और देर बाद ये यहाँ पहुँच गया वॉरहेड, ये यहाँ पहुँच गया और ये सपोज इधर चला गया, और इन तीनों का सेंटर ऑफ मास निकाला, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया। फिर और थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ गया, ये थोड़ा और आगे चला गया और ये और आगे चला गया और सेंटर ऑफ मास अब यहाँ आ गया। So we can say these 3 warheads, they would move in such a way कि जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी ट्रेजेक्ट्री पे ही चलता रहेगा जिस ट्रेजेक्ट्री पे इसने पहले जाना था, अगर वॉरहेड मिसाइल ने रिलीज नहीं किए होते। So these are 2 examples of motion of center of mass. Now rigid body, as the name suggests,
एक ऐसी बॉडी जिसकी शेप को बदलना बहुत ही मुश्किल हो। सो वी कैन से अ नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी जिसकी शेप को चेंज करना नामुमकिन हो। रिजिड बॉडी जो है ये किसकी बनी होगी? जैसे यू टेक आयरन बॉल इज मेड ऑफ आयरन एटम्स। ये आयरन एटम्स बहुत सारे आपस में जुड़े हुए हैं और आयरन की बॉल बन गई। तो ये जो एटम्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस आयरन बॉल में जो है, अगर मैं इसको मुट्ठी में पकड़ के इसको छोटा कर दूं तो इसका मतलब मैंने एटम्स के बीच की डिस्टेंस कम कर दी और अब ये कम जगह घेरेगी। But as you know, it is not possible. Even if we apply large force, the distance between atoms in the iron wall cannot be decreased. So इसका साइज हम छोटा नहीं कर सकते। So it is a non-deformable body. Stone है हमारे पास, that is also non-deformable body. उसकी शेप को हम नहीं चेंज कर सकते। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी डिपेंड्स ऑन शेप कैसी है उसकी भी बॉडी की, रिजिड बॉडी की। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है, इन दो चीज़ों के ऊपर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन डिपेंड करेगी। जैसे अनदर थिंग, सेंटर ऑफ मास मे और मे नॉट लाई इनसाइड द बॉडी। अभी हम बताते हैं। दिस इज अ रॉड, यूनिफॉर्म रॉड। बाय यूनिफॉर्म आई मीन कि इसकी मोटाई हर जगह बराबर है। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर टुकड़ा यहाँ से काटता हूँ, इसका भार मान लिया 10 ग्राम है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर। और अगर यहाँ से 1 सेंटीमीटर टुकड़ा काटता हूँ तो इसका भार भी 10 ग्राम होगा 1 सेंटीमीटर का। यहाँ से काटता हूँ तो इसका भार भी 10 ग्राम। तो इसको हम यूनिफॉर्म रॉड कहेंगे। तो इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली यहाँ बिल्कुल बीच में होगा। अगर ये 2 मीटर की है तो यहाँ पे होगा बिल्कुल, इस किनारे से 1 मीटर और इस किनारे से भी 1 मीटर। बट इफ अवर रॉड इज नॉन यूनिफॉर्म, जैसे ये है, इसका 1 सेंटीमीटर यहाँ से पतली है, इधर से मोटी होती जा रही है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर काटेंगे, इसका भार कम होगा। यहाँ जैसे काटेंगे इसका भार थोड़ा ज़्यादा, यहाँ से काटेंगे 1 सेंटीमीटर, इसका भार और ज़्यादा। सो वी कैन से हियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्म। जबकि इसमें क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वॉज यूनिफॉर्म। इसका सेंटर ऑफ मास जो भारी वाला पोर्शन है उसके ज़्यादा करीब होगा, यहाँ जैसे, बिकॉज दिस साइड इज हैवियर। तो ये इट शोज के पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इसका अगर ये 10 किलो की है तो 5 किलो इधर से और 5 किलो इधर से। 1 मीटर का भार इधर लेफ्ट वाले का 5 किलो और राइट वाले का 5 किलो। लेकिन इसमें अगर हम लेफ्ट वाला 1 मीटर लेते हैं, इसका भार कम होगा और राइट वाले 1 मीटर का भार ज़्यादा होगा। सो इस केस में द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल चेंज। भार इसका भी 10 किलो, भार इसका भी 10 किलो, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास इसके हैवियर वाले किनारे के ज़्यादा पास है। दिस इज सॉलिड स्फीयर। इसका सेंटर ऑफ मास जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहीं पे ही होगा। रेक्टेंगुलर लेमिना, लेमिना मीन्स 2 डायमेंशनल बॉडी। जैसे हमारा पेज है, you know there are 3 dimensions, length, breadth and height. पेज की लेंथ सपोज इट इज 25 सेंटीमीटर, breadth is say 12 सेंटीमीटर, height is 0.0001 मीटर सेंटीमीटर सॉरी। तो थर्ड डायमेंशन इज नेग्लिजिबल, जो हाइट है। इसकी लंबाई अप्रिशिएबल है, चौड़ाई काफ़ी है, बट थर्ड डायमेंशन इज नेग्लिजिबल। सो पेज इज लेमिना। लेमिना मीन्स 2 डायमेंशनल बॉडी, नॉट एग्जैक्टली 2 डायमेंशनल, जिसकी ऊंचाई थर्ड डायमेंशन न के बराबर हो। तो अगर ये पेज है या शीट है आयरन की, तो इसकी जो डायगोनल है जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, दिस इज सेंटर ऑफ मास। सिमिलर ट्रायंगुलर लेमिना, दीज मीडियन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ सेंटर ऑफ मास। इन
5 एग्जाम्पल्स में यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे इफ़ इट इज़ आयरन रॉड, आयरन यहाँ पे प्रेजेंट है, हॉलो नहीं है। इसमें भी यहाँ सेंटर ऑफ मास है, यहाँ भी मैटर प्रेजेंट है। इसमें ये सॉलिड है, तो जहाँ सेंटर ऑफ मास है वहाँ भी मैटर प्रेजेंट है। जिस मटेरियल की ये बॉडी बनी हुई है वो मटेरियल सेंटर ऑफ मास पे भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बट इफ़ यू टॉक ऑफ ए रिंग, रिंग सपोज ये लोहे का कड़ा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, बट हेयर इस जहाँ सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे ये आयरन मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, तो हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास इज़ आउटसाइड द सिस्टम। अगर आप देखें यहाँ पे ये इसके रिंग के अंदर है सेंटर ऑफ मास, बट इनसाइड और आउटसाइड से हमारा मतलब ये है कि अगर जिस मटेरियल का वो ऑब्जेक्ट या रिजिड बॉडी बनी हुई है वहाँ पे वो मैटर प्रेजेंट होना चाहिए सेंटर ऑफ मास की जगह। अगर जहाँ सेंटर ऑफ मास है वो मटेरियल प्रेजेंट नहीं है जिसका वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, देन वी विल से इट इज़ आउटसाइड। जैसे ये सिलेंडर है, हॉलो है, तो ये जो इसकी एक्सिस है यहाँ पे इस एक्सिस के ऊपर ये सेंटर ऑफ मास होगा। और इफ़ इट इज़ अ आयरन सिलेंडर, तो यहाँ पे आयरन नहीं है, सो हम इसको कहेंगे इट्स सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड द सिस्टम। सो ये था कि आउटसाइड और इनसाइड की बात क्या होती है। नाउ कपल ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास। This is HCl molecule. Given the distance between these two atoms is 1.27 angstrom, and it is also given mass of Cl atom is 35.5 times the mass of hydrogen atom. तो locate position of center of mass. So it is line joining two atoms. तो ये सेंटर ऑफ मास इस लाइन के ऊपर ही कहीं पे होगा, एंड इट विल बी क्लोजर टू Cl। Cl भारी है, सो ये हम ओरिजिन ले लेते हैं। और ये सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे है, इसका मास m1 और ये ओरिजिन पे है, ये यू में टेक दिस बाई एक्सिस, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज बाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। सो इट इज़ एट ओरिजिन, तो इसके कोऑर्डिनेट x1/1 0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2/2, लेकिन x एक्सिस के ऊपर बाई कोऑर्डिनेट 0, इसके कोऑर्डिनेट x2/2। x2 है हमारा 1.27 एंगस्ट्रॉम, बाई 2 इसका कोऑर्डिनेट 0 बिकॉज ऑन x axis by coordinate is 0. So put values here, m1 है, इसका x1 कोऑर्डिनेट 0 है, m2 35.5 m1 and x2 is 1.27, then m1 plus m2 is 35.5 m1. Calculate, it is 1.235 angstrom. So this distance is 1.270, तो ये पूरी डिस्टेंस 1.270 और सेंटर ऑफ मास 1.235, लगभग यहाँ जैसे, तो वी कैन से इट इज़ वेरी क्लोज टू m2 या Cl atom. Now another numerical. We have 3 balls. This is m1 ball, its mass is 3 kg. This is m2 2 kg. It is m3 of mass 1 kg. तो इन तीनों का सेंटर ऑफ मास बताना है मुझे। दिस इज 1 2 3 4 मीटर एंड सिमिलरली 1 2 3 मीटर। सो ये है हमारी m1, इसके कोऑर्डिनेट्स x1/1 जो कि 0 है। m2 का x कोऑर्डिनेट इज 1 मीटर, बाई कोऑर्डिनेट इज 2 मीटर, सो x2 इज 1 मीटर, बाई 2 मीटर। इसके कोऑर्डिनेट, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो ये हो गया इतना x3, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस x3 इज 2 मीटर, ये रहा 2 मीटर।
एंड बाई 3 इज दिस हाइट, ये दिस हाइट, दिस इज 1 मीटर. सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू x और कैपिटल बाई सपोज इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं. तो इनकी वैल्यू निकालनी है. यू नो x सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट इससे दिया जाएगा. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज 4/6 मीटर मीन्स 0.67 मीटर. बाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इससे निकलेगा, हमने किया था. तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे. दिस इज 5/6 0.84. ये इस पॉइंट को लोकेट करना है जिसके कोऑर्डिनेट एक ये हैं x कोऑर्डिनेट एंड बाई कोऑर्डिनेट ये है. तो x इज 67 सेंटीमीटर. तो ये तो हमारा हो गया 1 मीटर. 67 सपोज ये हो गया 67 सेंटीमीटर, यहाँ 0.67. और जाना है यहाँ से ऊपर 84 सेंटीमीटर. तो ये यहाँ तक 1 मीटर है. लेट अस सपोज ये हमारा 84 सेंटीमीटर. तो ये है हमारा सेंटर ऑफ मास. दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम. अब एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल. ये जो मैंने सॉलिड दिखा रखा है डार्कन लाइन, इट इज़ ए रॉड. ये रॉड है हमारी यूनिफॉर्म मोटाई की. इसकी लंबाई है 12. तो हम ये कहते हैं कि ये एक पार्टिकल है जिसका भार m1 है और इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा. आई रिपीट, दिस इज अ रॉड ऑफ लेंथ 2L मीटर. तो इसका सेंटर ऑफ मास ये हुआ, इसके बिल्कुल बीच में. L मीटर ऊपर यहाँ से और L मीटर यहाँ से नीचे. So I can say कि this rod is like a particle of mass m1 और इसका सारा मास जो है यहाँ पे कंसंट्रेटेड है सेंटर ऑफ मास. कुल मिला के हम ये मानेंगे कि ये रॉड एक पार्टिकल है जिसका भार m1 है और यहाँ पे है. सिमिलरली ये इसकी लंबाई भी 2 मीटर है. तो लेट इसका मास 2m और इसका जो सेंटर ऑफ मास ये है. तो ये सारी रॉड को हम एक पार्टिकल मानते हैं जिसका मास m2 है. ये पोर्शन रॉड का ये भी 2L लेंथ का है. तो इट इज़ आल्सो इक्विवेलेंट टू अ पार्टिकल ऑफ मास m3 और ये बिल्कुल इसके सेंटर ऑफ मास में. ये रॉड इसकी लेंथ L है. तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक की जाए. तो ये यहाँ पे एक पार्टिकल मानते हैं जिसका भार m4 है और यहाँ पे बैठा हुआ. तो इसका हमने सेंटर ऑफ मास निकाला है इस रॉड का. तो दिस इज़ अ पार्टिकल ऑफ मास m1. ये m1 ये 2L लेंथ की है. 2L लेंथ है तो इसका भार m1 का 2m. ये रॉड भी हमारी 2L लेंथ की है. इसका भार m2 है और ये 2m. जो थर्ड आर्म है ये भी 2L लेंथ की है. इसका भार भी 2m इसका. और ये L लेंथ की है. इसका भार आधा होगा इससे. तो इट इज से m. तो वी हैव 4 पार्टिकल्स, 1 2 3 4 और इनका मास ये हो गया. और अब इनके कोऑर्डिनेट्स, ये m1 है, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1. ये बाई एक्सिस के ऊपर है. ये तो बाई एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 और ये यहाँ से यहाँ तक दिस इज L. तो ये बाई 1 इज इक्वल टू L. ये x एक्सिस के ऊपर है m2. x एक्सिस के ऊपर बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2/2. सो बाई 2 इज 0. x2 यहाँ से यहाँ तक ये L. सिमिलरली ये हमारा पार्टिकल, इसके कोऑर्डिनेट x3/3. x3 तो हो गया इसका ये वाले डिस्टेंस बाई एक्सिस है. इट इज़ इक्वल टू 2L. और ये ऊंचाई जो है इसकी दैट इज़ इक्वल टू L. ये बाई 3 हो गया. सिमिलरली इसके x4/4. ये जो इसकी ये डिस्टेंस है यहाँ से, दिस इज x कोऑर्डिनेट x4. तो ये यहाँ तक ये है हमारी L/2 और ये हो गई हमारी 1.5L.
ये पूरी जो है इट इज़ 2L, और ये हमारे 2L में से ये L/2 कट गई बिकॉज ये सारी L लेंथ है, तो ये इधर वाली L/2. सो x4 इज़ 1.5 L बाई 4 ये ऊंचाई, दिस इज 2L. So put values here in this equation. ये x is capital X is x coordinate of center of mass of this system, और y coordinate is सारे rod का जिसकी shape ऐसी है capital Y. So substitute value of x1 y1 sorry x1 x2 x3 x4 or m1 m2, or you will get the coordinates of center of mass of this rod. Now next is find work done in raising a wall of height 2 meter and mass 1000 kg. ऐसे केसेस में जैसे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें हम, ये जो सबसे नीचे वाली लेयर है दीवार की, ये ब्रिक की लाइन है, इन ब्रिक्स की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. जो दूसरी लाइन में ब्रिक्स है, दूसरी रो में यू कैन से, इनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है ग्राउंड से, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा. इस रो में जो ब्रिक्स हैं इनकी हाइट और ज़्यादा, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा, इनकी और ज़्यादा. सबसे ऊपर वाली रो में जो ब्रिक्स होगी उनकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी. तो ऐसे में अगर हम निकालना चाहें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वर्क डन, तो वी नो वर्क डन इज mgh. तो इसमें हाइट हम इस दीवार के सेंटर ऑफ मास की लेंगे, मास ऑफ होल वॉल मल्टीप्लाइड बाय g एंड हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस वॉल. तो ये यूनिफॉर्म थिकनेस की है हमारी जो दीवार है, तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर 2 मीटर की ऊंचाई पे की है तो 1 मीटर की ऊंचाई पे होगा. सो वर्क डन इज mgh वी नो, बट हेयर इसमें एज आई टोल्ड यू सभी अलग अलग रोज की हाइट जो है अलग अलग हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी इस रो की इंटों की कम, इसकी ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा. तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग सेपरेटली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच रो, व्हाट वी डू इज़ वी टेक हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास. जैसे इस रो की हाइट जो है 2 मीटर के लगभग होगी, इसके सेंटर की हाइट, इसके सेंटर की हाइट ज़मीन से थोड़ी और कम है, इसके सेंटर की और कम है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस रो की इंटों की कम होगी, इस रो की इंटों की और भी कम होगी. सो वी विल टेक हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो मास इज गिवन g10 ले लिया हमने, एंड हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास 1 मीटर. सो ये 10⁻⁴ kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, एंड दिस इज जूल. Now another very interesting question. This is a pulley and two masses are connected at the ends of a string which passes over the pulley. ये पुली के ऊपर से ये स्ट्रिंग पास कर रही है और ये मास ज़्यादा है. When this system is released, ये नीचे आएगा और ये मास ऊपर जाएगा. So we know position vector of center of mass of two particle system जो कि कल हमने ट्राई किया था, ये होता है. If you differentiate this dr/dt, center of mass की velocity, it will be dr/dt, where r is position vector of center of mass. तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग ये आ जाएगी हमारी. फिर एक बार इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना. इट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय dt. तो यहाँ पे v सेंटर ऑफ मास की वैल्यू पुट करिए इसके बराबर, एंड डिफ्रेंशिएट, ये आ जाएगा. नाउ इफ़ यू लुक केयरफुली, चलिए ये ऊपर जाएगा मास, ये मास नीचे आएगा. जितनी इसकी स्पीड बढ़ेगी उतनी स्पीड इसकी बढ़ेगी. फ़र्क ये है, इसकी ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है. सो अगर मैं इस एक्सेलरेशन को a1, इसका एक्सेलरेशन, इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा. तो ये एक्सेलरेशन अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ मास a1.
तो इसका एक्सेलरेशन 2 नंबर का इट विल बी नेगेटिव, और उल्टा भी लिया जा सकता है। तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। सो सब्स्टिट्यूट A1 की जगह पे पॉजिटिव है, A2 की जगह पे -A। पुट करने के बाद ये आ जाएगा हमारा, इसमें A कॉमन है, ये आ गया। इफ़ यू रिमेंबर कनेक्टेड मोशन में हमने पढ़ा था लॉस ऑफ मोशन के अंदर कि एक्सेलरेशन A जो है इस ब्लॉक का है, इस ब्लॉक का, दैट इज गिवन बाय दिस। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हेयर। अगर हम यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी, ये A इज इक्वल टू दिस, एंड ऑन सिंप्लीफाइंग ये m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर एंड दिस g। So this is acceleration of m1 or this is acceleration of center of mass. Now next question is two skaters of masses 40 kg and 60 kg stand facing each other at A and B such that AB is 5 meter. They pull on a massless rope stretched between them. Where would they meet? दो बच्चे, इनका फेस एक दूसरे की तरफ, रस्सी पकड़ रखी है, रस्सी को खींचा, ये 60 kg का, ये 40 kg का, दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर। तो जब मान लिया ए बच्चे ने रस्सी को अपनी ओर खींचा तो बी इस तरफ आएगा, एंड जब ए बी पर फोर्स लगाएगा बी इस तरफ आएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ए के ऊपर भी फोर्स लगेगी तो ए इधर जाएगा। सो कहाँ पे मिलेंगे, दैट इज आवर क्वेश्चन। तो वी नो द x coordinate of center of mass is given by this, the capital X is x coordinate of center of mass। मैंने आपको ये बताया था इफ़ यू रिमेंबर कि इफ़ ये जैसे these are two particles और ये था हमारा सेंटर ऑफ मास, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर, दिस इज आर वेक्टर। सो अगर मैं इसको यहाँ अगर मैं यहीं दिखाता हूँ, ये ओरिजिन यहाँ कर दिया, तो अब ये ओरिजिन अगर O के बजाय O डैश पे लिया जाए तो अब R वेक्टर इतना आ जाएगा, और अगर ओरिजिन में यहाँ शिफ्ट कर दूँ O डबल डैश पे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक R वेक्टर होगा, और अगर मैं यहीं पे ही ओरिजिन को शिफ्ट कर दूँ तो सेंटर ऑफ मास और ओरिजिन कोइंसाइड कर गए और R जो है इट विल बी 0। अगर R 0 हो गया तो ये था हमारा इसके बराबर, X, Y एंड Z दे वर पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर ये R 0 हो गया तो इट मीन्स X भी 0, Y भी 0, Z भी 0, या यू कैन से ओरिजिन पे इसके कोऑर्डिनेट कैपिटल X कैपिटल Y 0 हो जाएगा। सो मैंने यहीं पे सेंटर ऑफ मास है इन दोनों का, ये 60 kg का है, ये 40 kg का है, तो सेंटर ऑफ मास 60 kg वाले बच्चे के ज़्यादा करीब होगा ये, तो दिस इज सेंटर ऑफ मास और यहीं पे ही ओरिजिन। तो इसका मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का वो 0 होगा, बिकॉज इट इज़ ऑन x एक्सिस, ये x एक्सिस है। तो R1 R2 लेने के बजाय हम इसको x1 x2 लेते हैं। ये वैसे ये R1 होना चाहिए था, ये ऐसे होता है जैसे दिस इज़ योर R1, दिस इज़ R2। सो ये हमारे R1 R2 ओरिजिन से इन पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर। तो अगर ओरिजिन ही यहाँ पे आ जाए इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर, ये ओरिजिन यहाँ आ गया, यहीं सेंटर ऑफ मास और यहीं पे ही ओरिजिन, तो अब O से ये होगा इसका पोजीशन वेक्टर R1 और ये O से ये होगा R2। बट इफ़ इट इज़ x एक्सिस तो हम इट इज़ बेटर टू टेक ये R1, दिस इज़ R2, सो R1 R2 को x1 x2। सो x कोऑर्डिनेट ये होगा, सिंस
ओरिजिन पे ही सेंटर ऑफ मास है तो इट इज़ 0, तो पुट वैल्यू 60x1 प्लस दिस, और ये आ गया हमारा, ये इधर आके 0 हो जाएगा, तो 60x1 प्लस 40x2 एंड दिस इज इक्वल टू 60x1 इक्वल टू माइनस 40x2, और इन मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइन को छोड़ दीजिए तो यू विल गेट x2 अपॉन x1 इज 3/2. इट मीन्स M2 या स्केटर B वुड मूव 3 मीटर. जो B है ये 3 मीटर इधर आएगा, और जो A है ये यहाँ से 2 मीटर इधर चलेगा, और दे विल मीट हियर, यहाँ पे मिलेगी. तो इसने 60 kg वाले ने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, और 40 kg वाले बच्चे ने 3 मीटर. नाउ लास्ट न्यूमेरिकल. A square of side 4 centimeter, 4 centimeter of uniform thickness. इसकी thickness uniform है. It is divided into 4 equal squares, और एक स्क्वायर ये शेडेड है, इसको रिमूव कर दिया गया, काट दिया गया इसको, तो फिर हमारे पास इसके 3 हिस्से रह गए. तो कहते हैं वो जो कटा हुआ हिस्सा है, सॉरी जो 3 हिस्से रह गए उनका सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ पे होगा. यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस स्क्वायर शीट का एक टुकड़ा लें, 1 सेंटीमीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, इसका भार 4 ग्राम है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर. So area is length into breadth, so it is 1 centimeter square. So ये यूनिट एरिया हो गया. इसका भार 4 ग्राम. तो अगर ये यूनिफॉर्म थिकनेस की है तो आप चाहे यहाँ से काटें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पीस, इसका भार 4 ग्राम होगा, यहाँ से काटेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भार भी 4 ग्राम होगा, यहाँ से काटेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भार भी 4 ग्राम होगा. सो ये है कि यूनिफॉर्म थिकनेस की शीट. तो इसमें 4 स्क्वायर हैं, और उसमें से 4 स्क्वायर जब तक ये पूरी शीट थी तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा. स्क्वायर शीट है जो इसके डायगोनल्स हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे होगा. हमने जैसे आपको इसका लेमिना का बताया था, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स. तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था जब ये पूरे 4 पीस थे. अगर मैं इसको काट देता हूँ, निकाल देता हूँ, तो फिर ये 3 पीस जो बच गए उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा वो बताना है. तो ऐसे केसेस में हम क्या करें. अच्छा, इसका एरिया है 6, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तो एरिया इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो चलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का भार 4 के बजाय इट इज सिग्मा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का इतना है मास, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का भार इतना होगा. सो दिस इज मास ऑफ, यू कैन से दीज 4 स्क्वायर्स. तो 1 स्क्वायर का भार हुआ 4 सिग्मा, 4 स्क्वायर हैं, एक का भार छोटा है. ये है पूरी स्क्वायर शीट का, और ये है 3 जो पीस हैं उनका भार. आई एम सॉरी, ये पूरी स्क्वायर शीट का भार है, और एक जो रिमूव्ड कट ऑफ स्क्वायर है उसका भार. तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम इनको 2 पार्टिकल मानेंगे. एक तो हो गया इस मास का, और ये हो गया दूसरा. पहले जब ये पूरा था तो भार इतना था, जब हमने एक पीस काट दिया, ये है उस पीस का भार जो कटा हुआ है. तो व्हाट वी डू ऐसे केस में, यू नो सेंटर ऑफ मास जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये होता है m2 x2 m1 प्लस m2. अगर 2 पीस की बात करें हम, 2 बॉडीज़ का होता है. तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम इनको 2 पार्टिकल्स ही मानेंगे. एक का भार इतना है, दिस इज योर m1, दिस इज m2. जो m1 है वो है 16 का, और m2 जो काटा हुआ है उसका भार इतना है 4 सिग्मा.
द ओनली डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे प्लस के बजाय जब आप पीस को रिमूव करेंगे तो ये नेगेटिव साइन होगा, दैट्स इट, और कोई चीज़ नहीं। आई रिपीट, ये M1 तो हो गया पूरी वाली शीट का भार। M2 जो एक पीस काटने के बाद, सॉरी M2 जो हमने एक स्क्वायर काटा उसका भार, जो स्क्वायर काटा उसका भार यहाँ पे नेगेटिव है। सो ये हो गया हमारा 16 सिग्मा। इसका जो सेंटर ऑफ मास था, जो 16 सिग्मा मास की जो शीट थी वो यहाँ था। तो ये x1 और y1 जीरो, इसका x1 कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा, y1 भी जीरो होगा, क्योंकि पहले सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे था। फिर ये जीरो हो गया x1 प्लस M2, ये सॉरी दिस इज, चलो हम ऐसा करते हैं, पहले लेट मी टेक इट इज कैपिटल M, और ये है हमारा जीरो, और ये हो गया हमारा स्मॉल m जो रिमूव किया, x2 इज ये जो हमारा ये है कटा हुआ पोर्शन, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2। तो x2 ये यहाँ से यहाँ तक इट इज़ 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, तो ये इसका दिस इज x2, तो x2 इज 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल M माइनस M, so it is 0, so x is equal to minus this small m is 4 sigma into 1, ये 1 divided by capital M is 16, small m is 4, so it is minus 4 sigma upon 12 sigma, and this is minus 1 by 3, ये कट गया। सो ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का। सिमिलरली बाई कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा आपका, बाई कोऑर्डिनेट ये हो गया हमारा कैप M1 का भार 16m और इसका कोऑर्डिनेट बाई 1 0, ये बाई 2 इट इज़ यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज -1, ये हमारी बाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस। तो इसका इस छोटे वाले स्क्वायर का, इस शेडेड वाले का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1, तो दिस इज योर बाई 2 इज -1, सो ये बाई 2 की वैल्यू -1, ये कैपिटल M की वैल्यू, ये स्मॉल m जो रिमूव्ड पोर्शन है ये आ गया। तो इफ़ यू लुक, ये -0.33, ये +0.33, ये यहाँ जैसे है, ये आपका यहाँ तक ये हो गया हमारा -x कोऑर्डिनेट जो है -33 मीटर, और ये बाई कोऑर्डिनेट +33, तो ये यहाँ से हम ये फिर इट इज़, ये है हमारा सेंटर ऑफ मास नया का, दिस इज सेंटर ऑफ मास। तो इसकी दूरी अगर ओरिजिन से निकालनी हो तो ये हो जाएगी, दिस इज AR, तो ये हमारा 0.33 सेंटीमीटर, एंड दिस इज -0.33 सेंटीमीटर या -1/3 सेंटीमीटर, और ये +1/3 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से दिस R जो नया सेंटर ऑफ मास है, इसकी दूरी ओरिजिन से ये पाइथागोरस थ्योरम से यू कैन कैलकुलेट, इट इज़ √2/3 सेंटीमीटर। So that's all about center of mass. Thank you for watching.